we are able to join virtually from 3 different locations, which are the Secretariat, the Auditorium of High Court of Tripura, and the actual place of inauguration, that is Shabroom, South Tripura. And we all have assembled here virtually to celebrate the inauguration of the court building of Subdivisional Judicial Magistrate and Civil Judge Junior Division, Shabroom, South Tripura, which will be inaugurated virtually soon by our Honorable Chief Minister. This court building of Shabroom, South Tripura has been a long cherished dream and demand of the people of this part of our state. We are extremely honored to have amongst us Honorable the Chief Minister State of Tripura, Mr. Biplab Kumar Deb, who has joined from the Secretariat. We are equally honored to have amongst us Honorable the Chief Justice, High Court of Tripura, Mr. Justice Akhil Qureshi, who has joined from the Auditorium of High Court of Tripura. Our program has also been graced by the kind presence of Honorable Minister of Law Government of Tripura, Mr. Ratan Nath. We also have the presence of Honorable Mr. Justice Vishwashish Talabatra, Judge, High Court of Tripura, and Honorable Mr. Justice Arindam Dhur, Judge, High Court of Tripura, who have joined from the auditorium. The respected Advocate General Government of Tripura has also joined from the auditorium. And at the same time, the respected member of Legislative Assembly of Shabroom, Sri Shankar Rai, has also joined us from the Secretariat. We have amongst us respected Registrar General, High Court of Tripura, respected Secretary Law Government of Tripura, and at the same time, respected District and Sessions Judge, South Tripura, Bilonia, Mr. A. Pandey, along with other respected judicial officers and invitees have joined from Shabroom. Our program has also been attended by the Chairman, Bar Council of Tripura, President, Tripura Bar Association, along with other respected members of the Bar. The respected members of the Registry of High Court of Tripura have also joined us from the auditorium. To begin with, I will request respected District and Sessions Judge, South Tripura Bilonia, Mr. A. Pandey, to deliver his welcome address. Thank you, Mahu. Good morning to everybody. Thank you to each and everybody of you for being with us today on auspicious occasion of the inauguration of new court building of STJ and Civil Judge Junior Division at Shabroom, Bilonia. In view of unprecedented situation due to coronavirus across the country, this ceremony is being held through virtual mode. This shows that we are dedicated and committed for our infrastructure development. It is my great pleasure to welcome on behalf of the people of Shabroom Subdivision, Honorable the Chief Minister, Government of Tripura, Sri Biplab Kumar Deb ji. I heartily welcome Honorable Mr. Justice Akhil Qureshi, Chief Justice, Honorable High Court of Tripura. I welcome Honorable Law Minister, Government of Tripura, Sri Ratan Nath ji. I welcome Honorable Justice Sri S. Talabatra, Judge, High Court of Tripura. I welcome Honorable Justice Sri Arindam Dhur, Judge, High Court of Tripura. I also welcome Honorable Justice Sri S. T. Chattopadhyay, Judge, High Court of Tripura. I welcome our MLA Sri S. Roy ji, who is in Agartala now. I welcome Advocate General, Government of Tripura, Sri S. S. Desai. I welcome Registrar General, High Court of Tripura, Sri D. M. Jamatia sir. I welcome Law Secretary, Government of Tripura, Sri Vishwajit Palik sir. I welcome Chairman, Bar Council of Tripura. I welcome President, High Court Bar Association. I welcome judicial officers and bar members of the Shabroom Bar Court. I welcome the technical team, members of the Honorable High Court, and also the NIC. I welcome the staffs and registry members of the Honorable High Court. I welcome other dignitaries along with the members of print and media. Thank you.
sir. May I now take the honor and privilege to request Honorable the Chief Minister State of Tripura, Mr. Biplab Kumar Dev, to inaugurate the new court building at Shabrum, South Tripura by unveiling the flag virtually. Thank you, sir. Now there will be a display of few slides of the new court building which has just been inaugurated by our Honorable Chief Minister. May I now take the honor and privilege to request Honorable the Chief Justice High Court of Tripura to kindly deliver his address on this occasion. माननीय मुख्यमंत्री श्री, मेरे दोस्त और कलीग्स, जजेस, कायदा मंत्री श्री, एडवोकेट जनरल जस्टिस पांडे और सारे डिग्निटरीज जो यहाँ प्रस्तुत हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। जब ये स्लाइड शो दिखाया गया तो मुझे ये बात ध्यान में आई कि अच्छा है आज हमारे बीच में कोई होटेलियर नहीं है, वरना उसको लगता कि ये बहुत अच्छी जगह है, आप कोर्ट कहीं और चला लीजिए, मुझे एक गेस्ट हाउस के लिए दे दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन जिसने बनाई और जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। मैं कुछ और बताऊँ उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम सब बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ना ही हमारे राज्य के, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों को इस बीमारी से निजात मिले। दोस्तों, मैं जब गुजरात हाई कोर्ट में था, एक किस्सा बहुत साल पहले की एक बात है। एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, बहुत झगड़े थे अंदर में, सेपरेशन हो चुका था। हस्बैंड का कहना था वाइफ घर छोड़ के चली गई, वाइफ की फरियाद थी घर से बाहर करा गया। 3 बच्चे थे।
वाइफ ने कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाली, बोले हस्बैंड के पास बच्चे हैं, मुझे मिलने तक नहीं देते, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, मुझे बच्चों की कस्टडी दिलवाइए। हमने नोटिस निकाला, हस्बैंड को कहा बच्चों के साथ कोर्ट में हाजिर रहिए। सबसे पहले बच्चों से बातचीत करी चैम्बर के अंदर। 3 प्यारे प्यारे बच्चे थे। एक बड़ी दिकरी बेटी थी, वो करीब 13-14 साल की थी, बड़ी समझदार सयानी। उसके 2 भाई थे, ट्विंस, 7-8 साल की कुछ उम्र ही होगी। पूछा कहाँ जाना चाहते हो? बेटी तो बहुत साफ थी, क्लियर थी, कहती है माँ के पास जाऊंगा, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेटों से पूछा, बड़ी असमंजस में थे, शायद घर से कुछ समझाया भी गया हो। कहते हैं पापा के घर वापस जाएंगे, माँ को मिलना तक नहीं है। हमने समझाया, माँ को करीब तो आने दीजिए, चेम्बर में लाने दीजिए, आप बात मत करना। कुछ माने, माँ को बुलाया चेम्बर के अंदर। दोनों में से एक बेटा पिघल गया, माँ को देखते ही उसको गले लगा के खूब रोया। कहता है माँ के पास जाऊंगा। उसका भाई जो था थोड़ा ज्यादा बहादुर था, कहता है मैं पापा के घर वापस जाऊंगा। वजह पूछी, कहता है कि मैं जब घर से निकला था तो मेरा कजिन है, मेरा दोस्त है, उसको मैंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर वापस आऊंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ सकता। हमने समझाया चलो आज घर जाओ अपने, फिर मम्मी के पास जाना, और ये तो बताओ आपको जाना कहाँ है? तो कहता है मम्मी डैडी दोनों के साथ रहना है। बच्चों को बाहर बिठाए, माँ बाप को बुलाए। बहुत सारी शिकायतें थी एक दूसरे के खिलाफ, कड़वाहट थी, दाद फरियाद, सब कुछ सुना। फिर जाके हमने बताया कि आपका बेटा तो कहता है कि साथ रहना है, न माँ के पास रहूंगा न बाप के पास रहूंगा तो साथ रहूंगा। माँ बाप ने कहा, हमने कहा आप हमारे खातिर एक आखिर कोशिश कर लीजिए। थोड़ा माने, बहुत कड़वाहट थी, फौरन तो सुलझाने वाली बात थी नहीं। कहा आज बच्चों को उसके पेरेंट्स के पास जाने दीजिए, फिर माँ के पास जाएंगे 2-3 दिन उसके माँ के पेरेंट्स के साथ। कुछ जाके हमने एक सबसे अच्छे से अच्छा मीडिएटर उनको दिया और कहा आप इनके बीच में फासला जो है वो कम करने की कोशिश कीजिए, 2 हफ्ते के बाद वापस आइए, कहिए क्या प्रोग्रेस हुआ है, आगे की बात देखी जाएगी। 2 हफ्ते बाद की तारीख लगाई। इस किस्से के 3 या 4 ही दिन के बाद जब हम कोर्ट में केसेस चला रहे थे तो ये केस मेंशन हुआ हमारे सामने। माँ बाप दोनों हाजिर थे, उनके वकील थे। कहते हमने सारे मुकदमे वापस खींचने का तय किया है, हम बच्चों के खातिर एक बार और कोशिश करेंगे। वाइफ ने जो केसेस डाले थे, हेबियस कॉर्पस पिटीशन, हैरेसमेंट का केस, मेंटेनेंस का केस, सब वापस लेकर के वो खुशी खुशी घर गए। जब हमने ये सारी तवारीख हमारे कोर्ट के ऑर्डर के अंदर लिखी और फाइनल ऑर्डर किया तो शायद ही कोई आंखें होगी जो कोर्ट के अंदर नम नहीं हुई होगी। आज मेरे कार्यकाल के 18 साल होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। इस 18 साल के दरमियान बहुत सारे केसेस सुने, देखे, पढ़े, पर जब भी इस सफर की याद करते हुए पीछे मुड़कर मैं देखता हूं तो मेरे जहन में ये केस सबसे पहले आता है और चेहरे पे एक मुस्कान और दिल में एक सुकून सा लगता है। मैंने ये बात आप सबके सामने आज इसलिए पेश करी क्योंकि मैं समझता हूं कि जब हम एक न्यायाधीश के तौर पर हमारी कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारा कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि हम तय करें क्या सही है और क्या गलत, कौन सच्चा है या कौन झूठा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों का प्रश्न, उनकी उलझने, उनकी मुश्किलें कायदे के दायरे में रह करके सुलझाएं। हमारे समाज का ये ढांचा है कि लोग कोर्ट में एक आखिर जब सब उसके
दरवाजे बंद होते हैं जब कोर्ट की राह लेता है। अगर कौटुंबिक कुछ झगड़े हैं, कुछ पड़ोसी के साथ मुश्किल है, तो आगेवान को आगे करेगा, घर के वडील है या बुजुर्ग है उसकी राय लेगा। अगर सरकार से कुछ नाराजगी है तो कलेक्टर के साथ पास कहा डालेगा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। जब जाके उसे लगता है उसे न्याय नहीं मिला तो कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक देता है। जब जब ऐसे इंसान हमारे पास आते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बात बड़ी शांति से सुने और अपने आप को 2 सवाल पूछें। एक तो ये कि क्या इस इंसान का मानना है कि उसे कुछ अन्याय हुआ है, उसकी बात सही है या गलत है? क्या ये अन्याय हुआ है या उसका सिर्फ वहम है? और दूसरा, अगर अन्याय हुआ है तो कायदे के अंदर उसके लिए कुछ चारा है, कुछ इलाज भी है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको अच्छे से अच्छी रिलीफ दे, चाहे वो उसका झगड़ा उसके पड़ोसी के साथ हो या नाराजगी सरकार के साथ हो। मैं समझता हूं कि आप लोग तो यहाँ के मुल्क के हैं, यहाँ की धरती में पले पड़े हैं। आप ये बात मुझसे कई ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी हम सब मिलकर के न्याय इसी तरह से करते रहें। जब मैं हम सब का जिक्र करता हूं तो मेरा उसके अंदर ना ही हमारे न्यायाधीश लेकिन सब वकीलगण और कोर्ट का स्टाफ भी आ जाता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये लोग हमारे न्याय तंत्र के अविभाज्य अंग हैं। उनके बगैर न्याय तंत्र हमेशा अधूरा रहेगा। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, सरकार का सकारात्मक सपोर्ट हमेशा रहा है। हम समझते हैं कि हमारी कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हम हमारी अपेक्षा कभी इतनी नहीं बढ़ाएंगे कि सरकार पर दबाव डले, और सरकार का साथ सरकार हमारे साथ रहेगा, वो मुझे पूरा विश्वास है। आज हम एक कोर्ट का निर्माण करने जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इस अच्छे मौके पर सीएम साहब आपने कुछ वक्त निकाला हमारे साथ, चाहे स्क्रीन पर भी कुछ चंद घड़ियां बिताई। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये स्क्रीन पर मिलना कम हो और रूबरू मिलने की संभावना ज्यादा बढ़े। मैं सब लोगों का फिर से आभार अदा करना चाहूंगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Lordship, for your valuable words. May I now take the honor to request Honorable the Chief Minister, State of Tripura, Mr. Biplab Kumar Dev, to address this virtual occasion. इस वर्चुअल जो कार्यक्रम है साबरुम का कोर्ट बिल्डिंग इनॉग्रेशन, इस प्रोग्राम में साबरुम से और सेक्रेटरीट से और हाई कोर्ट से जुड़े हुए सभी को मैं पहले विनम्र प्रणाम करता हूँ। जतन का और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय अकील कुरैशी जी, मेरे साथी और सीनियर मिनिस्टर लॉ डिपार्टमेंट श्री रतनलाल नाथ जी, और हमारे त्रिपुरा के धरती पुत्र तीनों जस्टिस, जस्टिस कलापत्र, जस्टिस लोड, जस्टिस चट्टोपाध्याय, हमारे साबरुम के विधायक शंकर रॉय, सेक्रेटरी लॉ, और यहाँ उसके सभी को मैं त्रिपुरा सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं चीफ जस्टिस साहब के भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं भी एक बात को आज शेयर करूंगा। मैं कुछ लिख के लाया था, मैं उसको बोलना नहीं चाहता।
मुझे आपके अंदर बहुत अच्छा एक इंसानियत दिखता है सभी से। पता नहीं त्रिपुरा के सब लोगों को पता है कि नहीं, आज पता चलना चाहिए। पिछली बार फर्स्ट वेव में जब कोरोना त्रिपुरा में आई थी, पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में, मैंने आपके अंदर एक अच्छे इंसानियत, एक अच्छे पिता और उसका फीलिंग को महसूस किया। मुझे पता नहीं त्रिपुरा से कोई पिता बाई रोड में और इस एज में, इस जो 50 ऊर्ध एज है, तो बाई कार में जब ट्रेन हवाई जहाज बंद थी, अपने अगरतला से गुजरात तक, गांधी जी का भूमि में आपका जन्म हुआ, आप ऐसे सौभाग्य हैं आपका, वहाँ तक आप पहुँचे हैं अपने बेटे को देखने के लिए, उनको सेवा करने के लिए। मुझे नहीं लगता त्रिपुरा में ऐसा इतने लंबे जर्नी करके अपने बेटे को देखने, अपने परिवार को देखने वाले कोई व्यक्ति दूसरा है तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, और आपको भी, जो आपके अंदर एक अच्छे चीफ जस्टिस के जो गुण है वो तो है ही है, साथ ही साथ अच्छे इंसान, ये मैंने आपको अंदर वो रूप देखा। मुझे दिक्कत भी हो रही थी कि मेरे चीफ जस्टिस से बाई रोड जा रहा है। मैं एक बार गुवाहाटी में पूछ रहा था, एक बार लखनऊ में, एक बार कहाँ है, और डीजी को भी पूछ रहा था, चीफ सेक्रेटरी को पूछ रहा था कहाँ है चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि इस ऐसे क्राइसिस में इतना हिम्मत वाला इंसान ये गांधी की भूमि से हो सकता है। और साथ ही साथ मेरे तीनों जो जस्टिस है इस भूमि से है। जस्टिस तलपत्र को मैं छोटे से जानता हूँ, लोध को मैं जानता हूँ, चट्टोपाध्याय को मैं जानता हूँ। मैं सरकार चलाता हूँ और मैं पहली बार विधायक हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मैं सीएम बना हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ समय समय पर आप लोगों का जजमेंट, आप लोगों का जो व्यवहार वो प्रो पीपल है, जनता के हित में आप लोग काम करते हैं। और इसलिए मुझे गर्व है जो मुझे ऐसे चीफ जस्टिस और ऐसे जस्टिस मिली हुई है और ऐसे जुडिशियल सिस्टम मिली हुई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे राज्य में देखता हूँ, हमारा भी बहुत सेम दोस्त है, तो कभी कभी बात भी करता हूँ। त्रिपुरा में पता नहीं, इस धरती में अलग ही कुछ होता है। और आप कितने सुंदर ढंग से त्रिपुरा का आर्थिक स्थिति को जानते हुए अपने भाषण में प्रस्तुति की है। जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ, मैं आप लोगों का जो डिसिप्लिन, सेवापरायणता, मैं गर्वित होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अपने जो इस बार जो हाई कोर्ट के वर्षी पर बहुत सारी महामान्य जस्टिस को, चीफ जस्टिस को आपने बुलाया, मुझे गर्व होता है जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आता है और छवि मोरा को देखने के लिए जाता है, उसके बाद ऊनुपुटी के बारे में बोलता है, तो ये आपके इनिशिएटिव के कारण से होता है। ये त्रिपुरा के जनता के लिए बहुत ही अच्छी एक सौगात है। और आपने जो लॉ यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव लिया है और हमारे आर्थिक जो स्थिति है उसके अंदर हम जरूर उसको करेंगे, तो मेरा पूरा भरोसा है आप तीनों जस्टिस और चीफ जस्टिस महोदय के ऊपर और आदरणीय लॉ मिनिस्टर के ऊपर इसको हम साकार बहुत जल्दी करेंगे। कोरोना हमको इसको रोक नहीं सकता, मुझे कुछ भी कष्ट हो, किंतु हम इसको बनाएंगे। और आपके ऊपर और आपके जस्टिस के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, आप लोग इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से त्रिपुरा का नाम रोशन करेंगे।
और हम इतना भी गरीब नहीं है। मैं जानता हूँ आप गुजरात से है, बहुत ही हेल्दी स्टेट है वो स्टेट। आज के दिन में गुजरात से जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ से आता है। और सबसे बड़ी बात है वो गांधी की भूमि से जन्म लिया हुआ। किंतु मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ, मेरे यहाँ भी महाराजा विद्युत कृष्ण मानकी की भूमि है और माँ त्रिपुरेश्वरी का ये धरती है जिसको हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन सब लोग मानता है। सबके लिए खुला है माँ का घर। ऐसा मुझे लगता नहीं पूरे देश में कहीं है। और मैं आप लोगों को भरोसा करता हूँ, जो त्रिपुरा के लॉ एंड ऑर्डर को वो तो होम डिपार्टमेंट देखता है, किंतु महिला के ऊपर जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, जो ड्रग्स के बिजनेस करता है उसमें लगे हुए मेरे जनरेशन को खत्म करता है, ऐसे लोगों को हम सजा दिलाने में सफल रहेंगे और कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है हम लोगों को। ऐसे लोगों को सबक मिले जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को नुकसान ना करे। टेबलेट देके या बार टेबलेट देके हीरोइन, ब्राउन शुगर, जिसका नाम मैंने कभी सुना नहीं, मैं भी त्रिपुरा में था, आज ये सब पहुंच गए। उसको रोकना है, उसको बंद करना है। मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ और मेरे को मिलता भी है। मैं देखता हूँ किस केस में बेल दिया, किस केस में बेल नहीं दिया। मैं कोशिश करता हूँ सब में नज़र रखने के लिए। और मैं आप लोग वहाँ बैठे हैं इसीलिए मैं अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। त्रिपुरा का जनता भी महसूस करता है कि सरकार सभी सिद्धांत सटीक करेगा, ऐसा होती नहीं है। किंतु आप लोग उसमें उंगली देके दिखाने वाले लोग हैं। सही जो है वो दिखाने वाले लोग होना चाहिए, तो गवर्नेंस मिलता है जनता को। और मैं चीफ जस्टिस कुरैशी जी के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि उनके अंदर इंसानियत है। अच्छे पिता का मैंने उनका अंदर रूप देखा, उनके अंदर मैंने जुनून देखा। मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं त्रिपुरा में बहुत घुमा हूँ। 2-2.5 लाख किलोमीटर त्रिपुरा में घूम चुका हूँ कि तो मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिली इस एज में इतना जुनूनी है, इतना हिम्मत है। त्रिपुरा से बाइक कार गुजरात पहुंच गए। मैं भी एक समय आया था 2005 में बाइक कार में। मैं दिल्ली से मेरे गांव तक आया था बाइक कार। किंतु मुझे मैंने देखा, मैं ही जो पॉजिटिविटी के साथ, सरकार के साथ, जनता के साथ देते हुए आप लोग काम करे जा रहे हैं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं अभी जो कोविड के सेकंड वेव चल रहा है उसमें आप लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें और सुस्त रहें। ऐसे त्रिपुरा में जो व्यवस्था है, हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो आईसीयू बेड हो, और डिसेंट्रलाइज्ड। पहले वेब में हम सिर्फ जीबी में ही कर पाए थे 221 बेड, तो आज के दिन में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वेंटिलेटर का, ऑक्सीजन बेड का, ऑक्सीमीटर का, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, जिसका नाम त्रिपुरा के लोग जानते नहीं थे, आज गांव-गांव में वेंटिलेटर जानता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जानता है, ऑक्सीमीटर जानता है। तो ये सब चीज़ से हमें परिचित हुई है और हम कोशिश करते हैं हमारे जो भी आर्थिक स्थिति है उसके अंदर उस काम को करने के लिए। और मैं त्रिपुरा के जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोगों ने जनता के कर्फ्यू हो, हमारा नाइट कर्फ्यू हो और कंटेनमेंट जोन हो, जब भी हमने घोषणा किया आप लोगों ने उसको सही ढंग से निभाने की कोशिश की है। वही एक रास्ता है इस युद्ध से को जीतना है। और मेरा पूरा भरोसा है आप लोगों का जैसे साथ मिलता रहा है सरकार को। सरकार माने जनता है, सरकार कोई अलग विप्लव देव सरकार नहीं है। विप्लव देव एक व्यक्ति है, उस कुर्सी में बैठा हुआ, उसके साथ कैबिनेट है। सरकार जो हमारे 37 लाख जनता है वो है। मैं जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे कार्यकाल में लगभग 1.5 साल एक कोरोना ने मुझे पीछे कर दिया, किंतु मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास
जो देखने वाले ऐसा चीफ जस्टिस है, इस एज में उनके अंदर इतना जुनून है, इतना समर्पण है, इतना पंक्चुअलिटी है। मैं आपको बोलता नहीं कि तो मैं देखता हूँ, तो मैं सीखता हूँ। मुझे गर्व है जो आप लोग त्रिपुरा के हाई कोर्ट में आसीन है, और इससे ज़रूर आगे जाके और भी त्रिपुरा को लोगों को अच्छे रास्ता मिलेगी। और हमारा जो सपना है त्रिपुरा को एक मॉडल स्टेट बनाना है, अच्छे जीवन शैली देना है लोगों को, वो करने में हम लोग सफल रहेंगे। मैं सबका साथ चाहता हूँ, और जैसे आप लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, आगे जाके और भी अच्छे से काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं दोबारा आप सभी लोगों को, जो लोग एक वर्चुअल प्रोग्राम में हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ साथ मैं साबरुम के विधायक को, क्योंकि उनके यहाँ एसीजेट भी चला गया, इनके यहाँ लॉजिस्टिक हब भी हो गया, इनके यहाँ जो रेलवे के गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए जो स्टेशन वो भी बन गया है, आईसीपी बन गया है, उनका जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे मैत्री सेतु वो भी कंप्लीट हो गया है। और ये सब साउथवासी को बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दक्षिण को एक नया दिशा देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं दोबारा आप सभी लोगों को इस वर्चुअल कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ। साथ साथ एक विनती करता हूँ, आप लोग खुद भी सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार के आसपास जो भी रहे इस समय उसको भी सुरक्षित रखिए, और एक दूसरे को मदद करिए।